Yeah, I Can you can hear me see now? it. Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Before starting with today's class, हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास की. So I'll just ask you a few rapid fire questions and then you can simply answer them. सबसे पहला question. What is the name of the enzyme which is involved in the conversion of tyrosine to dopa? Tyrosinase? Tyrosinase. And डोपाक्विनोन एक बार प्रोड्यूस हो जाता है उससे कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस होता है व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पिगमेंट Melanin? मेलानिन एंड व्हाट इफ इन एन इंडिविजुअल मेलानिन पिगमेंट की एब्सेंस होती है तो फिर उस कंडीशन का नाम क्या होता है एंड इज दैट कंडीशन रिसेसिव और डोमिनेंट The condition is recessive and it's called albinism. एल्बिनिज्म राइट एंड वो एक और चीज एल्बिनिज्म की जो कंडीशन है इज इट कॉज बिकॉज ऑफ अ नॉर्मल टीवाईआर जीन और अ म्यूटेटेड टीवाईआर जीन A mutated TYR gene. बिल्कुल सही ओके अब हम कंटिन्यू करते हैं विद मोर एंड मोर जीन्स की डिस्कशन तो पिछली क्लास में वी टॉक्ड अबाउट द टी वाई आर जीन या दैट वाज प्रीटी मच इट आज हम कंटिन्यू करते हैं सो द नेक्स्ट जीन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज समथिंग व्हिच यू आर familiar with up until this point. You have talked about this earlier. This is called the F8 gene. अब ये जीन जो है F8 दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इंटायर नेम ऑफ द जीन जीन का असल नाम F8 नहीं होता लेकिन जीन का जो रियल नाम है I'll write it down here gene name is factor 8 gene. Surprisingly or unsurprisingly, there are also factor 7s and factor 9 genes, but that's not in our syllabus. हमारे syllabus में है factor 8 का gene. अब ये वाला जो gene है, this is present on an X chromosome. So, इसकी position is on an X chromosome. That's the first two things you should know about. अब let's talk about कि factor 8 gene किन चीजों के लिए कोड करता है जैसे फॉर एग्जांपल TYR जीन टायरोसिनेस एंजाइम के लिए कोड करता है तो फैक्टर 8 जीन किसके लिए कोड करता है सो लेट मी राइट दिस डाउन हियर फैक्टर 8 gene codes for what does it code for Hemophilia? factor 8 gene codes for hemophilia or does it code for the factor 8 protein Yeah, for the factor VIII protein. Yeah. Bacterial protein. And this is one of the easiest ones to remember क्योंकि the name of the gene is also the name of the protein. Factor 8 gene का नाम how does it come into existence या इनका नाम इस gene का ऐसा क्यों रखा गया क्योंकि the protein which they produce उसका नाम भी वही है. So factor 8 gene codes for factor 8 protein. ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है या फैसिलिटेट करता है बॉडी को इन द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन अब coagulation या coagulation, whatever way we pronounce it, let's understand what that is. So, I want you to imagine this. For example, if a person has suffered an injury, have you observed कि injury होने के थोड़े दिनों बाद, the place where that injury has happened in the body, there is some sort of a solid, एक weird sort of a sticker बन जाता है body के ऊपर. It's a natural sort of thing. Yeah, yeah. Yeah. So वो होता है the blood. But blood तो liquid form में होता है. जब बॉडी एक इंजरी को सस्टेन करती है ना देन द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कन्वर्ट्स इनटू अ सॉर्ट ऑफ अ जेल इसीलिए इफ यू ट्राई टू टेक आउट that part or that sticker which is covering the injury which is preventing the blood from flowing so you would feel a sticky situation कि it's form of a gel your finger feels a little sticky वो क्यों क्योंकि it's actually the blood but the blood has converted into a sort of a gel in a semi solid form और वो solid form has stuck onto the outer part of the injury अब ये क्यों होता है क्योंकि अगर ये जो जेल है ये अगर नहीं फॉर्म होगा तो फिर blood will continue to keep flowing and flowing out of the body. So think of it as a sort of a mechanical barrier. For example, अगर एक टैंकर या एक कंटेनर में से पानी फ्लो करता है तो उसमें फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन क्या होता है
टेप लगा देते हैं उस टैंक पे या उस कंटेनर पे। तो जब हम टेप लगा देते हैं तो पानी फ्लो नहीं करता है। उसी तरीके से बॉडी भी अपने नेचुरल मैकेनिज्म को यूज करती है, थोड़ा सा लिक्विड ब्लड जेल में कन्वर्ट करते हैं, और वो जेल इंजरी के ऊपर लग जाता है। इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम flowing out of the body. This process of converting liquid blood into gel is called coagulation. और इस coagulation के प्रोसेस में F8 प्रोटीन यूज होता है। दिस मीन्स कि जब कोआगुलेशन होती है, मतलब जब F8 प्रोटीन यूज होता है, दिस लीड्स टू नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। दिस इज एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड को इंजरी की जगह पर क्लॉट किया जा रहा है, so that it does not keep flowing and so on. So, just as a summary, factor 8 gene codes for factor 8 protein, which helps in coagulation. अगर तो बॉडी में कोआगुलेशन हो रही है, मतलब बॉडी में नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग भी हो रही है। अब हमने पिछली से पिछली क्लास में एक चीज देखी थी, और वो क्या था? व्हेन एवर यू हैव अ जीन प्रेजेंट ऑन एन एक्स और अ वाई क्रोमोसोम, उसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। इट्स नॉट कैपिटल बी स्मॉल बी, या जस्ट राइट द नेम ऑफ द एलील, इस तरीके से नहीं। वी राइट द क्रोमोसोम जिसके ऊपर वो है। सो यहाँ पे इट्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, सो वी राइट एक्स, एंड देन ऑन द पावर ऑफ एक्स हम उसका एलील लिखते हैं। सो इस तरीके से दिस इज द डोमिनेंट एलील। एंड ये जो डोमिनेंट एलील है, इसका जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो क्या होगा? वुड इट बी नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग या वुड इट बी अब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग? Normal blood clot. बिल्कुल। तो डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे होगा नॉर्मल। इट्स नॉट कोऑगुलेशन, कोऑगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ओवरऑल प्रोसेस को नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ओके, अब लेट्स सी क्या होगा अगर इसी फैक्टर 8 जीन को एक्स एच ये वाले एलील को म्यूटेट करवा दिया जाए। अब म्यूटेशन हम तो नहीं करते, म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि किसी भी तरीके से हो सकती है। वी लुक्ड एट दैट इन द लास्ट क्लास। रेडिएशन कभी कभी खुद से रैंडमली भी हो जाती है। तो इफ म्यूटेशन अकर्स, दिस एलील इज नाउ एक्स एंड स्मॉल एच। इस एलील को हम कहते हैं दिस इज द रिसेसिव एलील। एंड ये रिसेसिव एलील करता क्या है? ये वाला जो एलील है, दिस कोड्स फॉर, अब तीन सिचुएशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन किस लेवल की म्यूटेशन हुई है या किस एक्सटेंट तक म्यूटेशन हुई है। ऑप्शन नंबर वन, या तो ये म्यूटेटेड एलील एक अब नॉर्मल F8 प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, मतलब एक ऐसा F8 प्रोटीन, फैक्टरी प्रोटीन, जो कि बिल्कुल भी कोआगुलेशन में काम ना सके। ऑप्शन नंबर टू, ये प्रोड्यूस करता है एक लेस नॉर्मल F8 प्रोटीन। अब नॉर्मल और लेस नॉर्मल में फर्क क्या है? अब नॉर्मल का मतलब कि वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कोआगुलेशन एंड इवेंचुअली ब्लड क्लॉटिंग में। लेस नॉर्मल का मतलब होता है इट इज नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल बट इट्स अ बिट क्लोज टू इट। इसका मतलब कि थोड़ी बहुत कोआगुलेशन में मदद कर देता है F8 प्रोटीन, ये वाला F8 प्रोटीन। कंपेयर टू अब नॉर्मल, वो तो बिल्कुल भी मदद नहीं करता। ऑप्शन नंबर थ्री, there is no F8 protein produced at all। तो इन तीन में से कोई एक चीज होगी ऑब्वियसली, या तो नॉर्मल F8 प्रोटीन, नॉर्मल सॉरी नहीं, अब नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, या तो लेस नॉर्मल, या तो नो F8 प्रोटीन एट ऑल प्रोड्यूस होगा। द थ्री ऑफ विच, एज इन कोई भी अगर मेथड यूज हो जाए, म्यूटेटेड एलील किसी भी चीज के लिए कोड कर दे, इट विल ऑल लीड टू वन कंडीशन, और उस कंडीशन का नाम है हीमोफीलिया। ऑब्वियसली ये हीमोफीलिया की कंडीशन होती क्यों है? क्योंकि इधर इट्स एन अब नॉर्मल और अ लेस नॉर्मल और नो एफिड प्रोटीन, ऑल थ्री ऑफ विच आर कोडेड बाय रिसेसिव एलील। तभी हीमोफीलिया भी एक रिसेसिव कंडीशन है। And if you compare, yeah, recessive trait, if you compare that to the dominant trait, that is obviously, as you said earlier, normal blood clotting. अच्छा, अब दिस इज ऑन एन एक्स क्रोमोसोम, सो क्या ये मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेगा या अनइक्वली? Unequally. अनइक्वली, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट मेल, मेल के लिए मेल हैज एन एक्स क्रोमोसोम एंड अ वाई क्रोमोसोम, मीनिंग इट ओनली हैज one X chromosome. So either it's going to be X capital HY or it's going to be X small hy. अब अगर कैपिटल एच हो
then the male is fortunate, he is normal. Normal as in कि मतलब उसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट एलील है, इसलिए डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा विच इज नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन अगर एक्स स्मॉल एच वाला एलील है, रिसेसिव एलील, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा, हीमोफीलिया, उस हीमोफीलिया की कंडीशन उस इंसान को होगी। Let's compare this to what would happen in a female. And this would basically also help you to understand कि एक ऐसा जीन जो कि एक्स या वाई क्रोमोसोम पे हो वो क्यों अनइक्वली अफेक्ट करते हैं मेल और फीमेल को। बिकॉज थिंक अबाउट इट, मेल के लिए तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स कैपिटल एच या एक्स स्मॉल एच। फीमेल में एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है और वो है एक कैरियर बनने की पॉसिबिलिटी। If a female is a carrier, is she still normal or does she also have hemophilia? If she's a carrier, then she does not have hemophilia. बिल्कुल, she does not have hemophilia. यहाँ पे the possibilities are X capital H, X capital H. अब ये तो नॉर्मल है, X capital H, X small h, ये भी नॉर्मल है, बट जस्ट दैट कि ये एक कैरियर है। एंड लास्टली, अगर दोनों ही एलील्स रिसेसिव है, so then obviously this means कि ये है hemophilia. But look at this. Out of the three possibilities, two out of three are normal, one out of three are hemophiliac. So the word we use for those which have hemophilia is hemophiliac. And में C का word use होता है. But now look at this. Males में 50% are hemophiliac, whereas 50% are normal. So you see the difference कि यहाँ पे 50% हीमोफीलिया कंडीशन होने का चांस है, यहाँ पे सिर्फ 33% होने का चांस है। दिस इज व्हाई वी से कि इफ इट्स अ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज, तो ये अनइक्वली मेल और फीमेल को अफेक्ट करेगा। सो एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? No, it's clear. ओके, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड जीन व्हिच वी नीड टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीन। दिस इज कॉल्ड द HTT जीन। अब इस जीन का डू यू नीड टू नो द फुल, एज इन डू यू नीड टू नो समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द एब्रिविएशन, इसका फुल फॉर्म? नो, एक्सेप्टेबल एक्रोनिम, यू कैन राइट दिस एज द नेम ऑफ द जीन, कि जीन नेम इज HTT। अच्छा, अब इस जीन की पोजीशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक द F8 जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम पर था, तो मतलब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होती थी, ये वाली जीन की ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होती है, which means that the position is on an autosome. ये वाला जीन एक ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेगा। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू पॉसिबिलिटीज, मतलब नॉर्मल HTT जीन एंड म्यूटेटेड HTT जीन। अच्छा, नाउ नोटिस मैंने नॉर्मल का वर्ड जो है स्पीच मार्क्स में लिखा है, बिकॉज देयर इज नथिंग एज अ नॉर्मल जीन। हम यहाँ पे नॉर्मल का वर्ड यूज करें जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ जीन एंड अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द सेम जीन, तो इसलिए नॉर्मल का वर्ड यूज कर रहे हैं, बट यू डोंट रियली यूज दिस वर्ड व्हेन यू टॉक अबाउट जीन्स। तो एक ऐसा जीन, एक ऐसा HTT जीन जिसमें म्यूटेशन नहीं हुई हुई, ये किसके लिए कोड करता है? दिस जीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है हंटिंगटन प्रोटीन। HUNTINGTON, स्पेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हंटिंगटन। तो इस प्रोटीन का नाम है हंटिंगटन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हमें काम क्या आती है बॉडी में? वेल, दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द ब्रेन डेवलपमेंट। सो जैसे जो TYR जीन थी, उससे जो मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता था वो अफेक्ट करता था स्किन कलर, आइरिस कलर, हेयर कलर, वैसे ये HTT जीन जो हंटिंगटन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है वो अफेक्ट करता है ब्रेन की डेवलपमेंट को। अच्छा, थोड़ी सी ना और डिटेल में बात कर लेते हैं ऑन व्हाट अ HTT जीन लुक्स लाइक विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन। सो इन एनी HTT gene, we will find C
A G repeats. Let's understand by what this means. Could you explain me the definition of a gene? मतलब gene की definition क्या होती है? As in gene किन चीजों से बनता है? Is it made of nucleotide bases या is it made of protein molecules? Gene किससे बनता है? Like it was the sequence of nucleotide bases, like for हम्म which like basically coded for like a particular polypeptide. बिल्कुल बिल्कुल सही. So a sequence of nucleotide bases. So let's say मैं ये कहता हूँ ATC GACGT. Can we call this a gene? Yeah. बिल्कुल. Obviously, a gene is much more longer. लेकिन just as an example, we can call this a gene. Sequence of nucleotide bases coding for a particular polypeptide gene. जब इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या होगा? Each of these nucleotide bases will correspond to a particular amino acid. तो इस न्यूक्लियोटाइड बेस का अमीनो एसिड, इसका अमीनो एसिड, इसका अमीनो एसिड, so on and so forth, और पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई. The thing is, when you talk specifically about an HTT gene, उसमें CAG के repeats होते हैं, which means basically an HTT gene looks something like this. CAG, ATCAG, TGCAG. Do you see some sort of a pattern here? CAG, CAG and CAG का? Yeah. Now, जानबूझ के मैंने ये सारे पैटर्न्स को एक साथ नहीं बनाया so that you wouldn't assume कि all CAG repeats are together with each other. ऐसा नहीं है. It's just that inside of the entire gene, there are many patterns or many trios. Trios as in this is not a word which you can use in bio, लेकिन trios का मतलब होता है three. So meaning you're talking about three bases which are in the order C, A and G. ऐसे बहुत सारे instances हमें देखने को मिलते हैं in an HTT gene और इन्हें ही कहते हैं CAG repeats. So CAG meaning the nucleotide bases जो इस order में बार बार repeat हो रहे हैं. तो CAG repeats. अब इन repeats का एक नाम भी है which you should remember. इनका नाम होता है stutters. So in a question, you could simply find the examiner saying an HTT gene consists of many stutters. You should understand stutters होता क्या है? CAG के बहुत सारे repeats होते हैं. Okay. Again, coming back to a normal HTT gene, एक normal वाले जीन में हमें देखने को मिलते हैं 21 to 35 stutters. मतलब कि 20, wait a second, stutters, let me just get the spelling right. Yeah. 21 to 35 केसेस ऐसे होते हैं पूरे के पूरे जीन में जहाँ पे CAG बार बार रिपीट होता जाता है. अब द इंटरेस्टिंग पार्ट, अ नॉर्मल सी एच टी टी जीन जहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं हुई हुई इज द स्मॉल एच जीन. सो क्या इसका मतलब है कि दिस इज द रिसेसिव ट्रेट या इज दिस द डोमिनेंट ट्रेट? The dominant trait. आर यू श्योर? स्मॉल एच इस एलील से डोनेट किया Oh जाता है इस yeah, सिंबल then को. recessive trait. रिसेसिव. इसका मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट एक एच डबल टी का जीन जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई हुई, दिस इज द रिसेसिव एलील. नॉर्मली हमने क्या देखा है कि कोई भी अजीब तरीके का या म्यूटेटेड जीन होता है, दैट्स द रिसेसिव वन. यहाँ पे द नॉर्मल वन इज द रिसेसिव वन व्हिच इज अ बिट वियर्ड एंड स्पेसिफिक फॉर एचटीटी. तो यू हैव द रिसेसिव एलील, मीनिंग दिस इज द रिसेसिव ट्रेट. अब लेट्स सी कि what's the difference between a normal one and a mutated HTT gene? Mutated gene में we will find more than 36 stutters. So 21 to 35 नहीं है, more than 36 होगा. अच्छा, कभी कभार म्यूटेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि now not even 36, you have more than 40 stutters. तो लेट्स से कि अगर म्यूटेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई है, इस लेवल तक हुई है कि यू हैव, वन सेकेंड, इस लेवल तक हुई कि यू हैव मोर देन 36 बट लेस देन 40.
This is where you may develop a disease called Huntington's disease. So normal HTT gene, there is no disease. This is a recessive trait जो कि normal है. But now this time, अगर थोड़ी सी mutation होती है, this is now called the capital H allele. And if the gene has more than 36 but less than 40, you may develop Huntington's disease. But what if it has more than 40? Then we say that there is a very high chance of developing Huntington's disease. So I want you to understand here the difference compared to जो हम पहले genes के examples में कर रहे थे. हम पहले क्या बात कर रहे थे? Normal gene, mutated gene. अब यहाँ पे normal gene, mutated gene. But यहाँ पे we are not only talking about a normal gene, but थोड़ा सा mutated and बहुत ज़्यादा mutated. So there are three different examples or three different situations which you should remember. Nevertheless, अगर mutated का word use हो रहा है, मतलब it's the dominant allele which we are talking about, regardless कि कितनी mutation हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, does not matter. तो यहाँ पे मैं summarize कर देता हूँ. Capital H allele, this is your dominant allele, which obviously is the mutated gene. And what's the dominant trait? The normal HTT gene. The trait, मतलब जो phenotype होगा वो क्या होगा? Having Huntington's disease. बिल्कुल. So the dominant trait is Huntington's disease. जबकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद द नॉर्मल जीन, मतलब ऐसी जीन जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई हुई, दिस इज स्मॉल एच, मीनिंग दिस इज द रिसेसिव एलील. दिस इज द नॉर्मल और यू कुड से अनम्यूटेटेड जीन, एंड यहाँ पे द रिसेसिव ट्रेट इज गोइंग टू बी नथिंग, इट्स जस्ट नॉर्मल. नाउ एग्जाम में कभी कभार P1, सॉरी, यहाँ पे एएस में होते हैं P1s, यहाँ पे तो नहीं होते, बट P4 में इन वन ऑफ द मार्किंग स्कीम पे पॉइंट्स, it basically gives you an option to be able to write the number of stutters, as in if you write that you get an extra mark. तो you could write कि एक normal gene में 25 to 35, mutated में या तो more than 36 होते हैं, कभी कभार more than 40 भी होते हैं, but you can see a clear pattern. Yeah, the more the number of stutters, the more serious the disease gets. 21 to 35, कोई मसला नहीं है, that is perfectly normal. More than 36, थोड़ी सा serious हो गया, you may develop the disease. Even more than that, very high chance of developing the disease. अब let me ask you this. इससे पहले वाले एग्जांपल्स में म्यूटेटेड वाला जो जीन होता था वो रिसेसिव होता था, यहाँ पे म्यूटेटेड वाला ही डोमिनेंट है. सो इज इट गोइंग टू हैव द सेम इफेक्ट एज व्हाट वी डिड अर्लियर, या इज इट गोइंग टू बी डिफरेंट दिस टाइम? Could you repeat? So for example, compare this to the TYR gene का example. Normal TYR gene, dominant allele. Mutated, recessive allele. उसमें जो रिजल्ट्स थे मेल और फीमेल के ऊपर, इज इट गोना बी द सेम एज इन दिस केस और इज इट गोना बी डिफरेंट? It's going to be the same. Going to be the same. Okay, so let me go back to the TYR gene again. हमने ये कहा था कि लेट्स से इफ दिस इज कैपिटल ए कैपिटल ए, तो TYR जीन के हिसाब से इज दिस एल्बिनिज्म और इज दिस नथिंग? Yeah, it's not albinism. Not albinism. What about this? It's a carrier. Yeah, and what about this? It is with albinism. मतलब कि अगर रिसेसिव एलील एक्सप्रेस हो रहा था तो दैट्स वेयर एल्बिनिज्म वाज हैपनिंग, करेक्ट? Yeah. बट नाउ लुक एट दिस. HTT gene में it's the dominant allele जो कि mutated है. So मतलब let's say if this is capital H, capital H. So what is this? What's the phenotype? Uh, it's with Huntington's. बिल्कुल, क्योंकि see H is the dominant allele, this is the mutated version. तो पहले
जब हमारे पास TYR जीन में होमोजाइगस डोमिनेंट था, दिस वाज नो एल्बिनिज्म। बट यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब होता है यस यू हैव द डिजीज। सो इजंट दैट डिफरेंट कंपेयर टू TYR? Yeah, it is. इट इज। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इफ इट्स हेटेरोजाइगस? इज दिस हंटिंगटन्स और विदाउट हंटिंगटन्स? With Huntington. बिल्कुल, तो इन दोनों केसेस में दिस इज विथ हंटिंगटन्स डिजीज। एंड द जो लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है स्मॉल एच स्मॉल एच। व्हाट अबाउट दिस? Without Huntington's. Without Huntington's, you're normal. Now, look at this. The three possibilities which we have, two out of three are Huntington's. This is why the Huntington's disease is so deadly. क्योंकि ये डिजीज सबसे पहले तो क्या करती है, ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड प्लस आउट ऑफ अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, देयर इज अ 67% चांस कि उसको हंटिंगटन्स डिजीज होगा, which is why it is so deadly, क्योंकि it is so much common कि 36 से ज्यादा या 40 से ज्यादा स्टटर्स हो सकते हैं उस HTT जीन के अंदर। तो 2 out of 3 are Huntington's disease, whereas 1 out of 3 is normal। बाकी सारे जब हम देखते थे 2 out of 3 नॉर्मल होते थे एंड 1 out of 3 डिजीज वाले होता था। Here it's the other way around। ओके, अब there are two more points which you should remember। ये जो डिजीज है ना, या ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के सिम्टम्स हमें सिर्फ तभी दिखते हैं व्हेन अ पर्सन इज गेटिंग ओल्डर। सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ चाइल्ड एंड अ चाइल्ड हैज हंटिंगटन्स डिजीज, हमें वो कभी भी पता नहीं चलेगा अनलेस द चाइल्ड गेट्स ओल्डर, लेट्स से बाय द एज ऑफ 30, 35, 40। सो एक ऐसा डिजीज which only shows symptoms when older। So you see, this is why this is also so much more deadly. Okay, you can have a child in front of you, a person walking around in front of you who may have the Huntington's disease, but you still don't know it. The symptoms सिर्फ कभी दिखेंगे जब वो बड़े होते जाएंगे, when they get older। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो हंटिंगटन्स डिजीज की स्क्रीनिंग भी रखवाती हैं कि यू कैन गो इन द हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन स्क्रीन योरसेल्फ फॉर इफ यू हैव दिस और ये वाला जीनोटाइप। इफ यू डू, देन यू कैन सॉल्व इट। इसका क्योर होता है बट ओनली इफ यू आर यंगर। इफ यू गेट ओल्डर एंड देन यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स, देयर इज नो क्योर फॉर इट। सी अगेन, दिस इज वाई मोर डेडली। अच्छा, कौन से सिम्टम्स होते हैं, दैट्स द सेकंड पॉइंट। सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं। मूड स्विंग्स, दैट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम। एंड नंबर टू, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फुटबॉल इज हर्लिंग एट यू, इफ अ फुटबॉल किसी ने दूर से पे किया, एक नॉर्मल इंसान में जिसमें कोई हंटिंगटन्स डिजीज नहीं है, बिल्कुल हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट है, he or she will protect his face by getting their hands above their face or in front of their face, right? And then they will try to move away at the same time। Yes. लेकिन इन अ पर्सन विथ हंटिंगटन्स डिजीज, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट तो बिल्कुल सही तरीके से है ही नहीं, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल, जिसकी वजह से उनकी मसल कोऑर्डिनेशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। At some point in time they will start to move their hands really slowly upwards, फिर थोड़ा लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, एंड इवन बिफोर ऑल दैट हैपेंस द फुटबॉल हैज ऑलरेडी हिट देम। तो दिस शोज कि ब्रेन कितना जरूरी हिस्सा होता है बॉडी का, उसकी वजह से मसल कोऑर्डिनेशन भी अफेक्ट होती है। सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द HTTG। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद टू मोर जीन्स। लेट्स कंटिन्यू। अगली जीन का नाम है HBB जीन। So we heard about HTT. This is HBB. Now, have you learned this in school? ये जो HBB gene है? I have actually I missed some part of school, so I haven't really done some of these. Like I've done the gene for like TYR gene. I've done HTT, factor 8. I've done, but I haven't done this one HPV. Okay. Now, the reason I asked this is because this is very interesting. If you relate this to AS Bio, which I believe you're giving again, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा रिवाइजिंग भी हो जाएगी AS Bio के एक टॉपिक की। अब ये जो जीन है, firstly let's talk about the location।
this gene is on an autosome. Acha, when we talk about a normal HBB gene, तो ये किस चीज के लिए कोड करता है? A normal HBB gene codes for a protein, and this might ring a bell. This is called beta globin. Are you able to remember this from AS Bio? So remember the hemoglobin का shape? Alpha Yeah, globin, beta globin. Yeah. yeah. तो वो सेम बीटा ग्लोबिन यहाँ भी यूज होता है, एंड वील रिलेट द हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इन जस्ट अ सेकंड। अच्छा, नॉर्मल एचबीबी जीन को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अगेन, इट्स नॉट जस्ट लाइक राइटिंग द नेम ऑफ द एलील, even though it's on an autosome. The way we write this is we write H, then B, and then the allele A. Because this right here stands for hemoglobin. This basically is a gene जो कि hemoglobin का structure में बनाने के लिए मदद करती है, इसलिए why this is why HB stands for hemoglobin, and then we write the allele as the power, which is capital A. कहने का मकसद है कि this is the dominant allele, and let's look at what the dominant trait is going to be. हमें ये पता है कि ये जीन कोड करती है फॉर बीटा ग्लोबिन। व्हाट इज बीटा ग्लोबिन? बीटा ग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से वी मेक टू बीटा चेन्स per hemoglobin molecule. Now, let's pause right here and let's first revise the structure of a hemoglobin molecule. तो फर्स्टली कुड यू टेल मी हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता था? टर्शियरी स्ट्रक्चर होता था या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर? Quaternary, I think. बिल्कुल सही। हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता था, इट हैज a quaternary structure. Now, जब भी हम बात करते हैं about quaternary structures, there are basically, I am not sure if I've written the spelling right, but it's fine, चलेगा अभी। Okay, whenever we talk about quaternary structures, proteins की दो shapes होती हैं। So, you could imagine it like this. सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनकी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, as in दो, तीन, चार या पांच, whatever it is, if it's more than one, then they move on to the quaternary stage. If they have only one chain, then tertiary stage उनका आखिरी स्टेज होता है। तो बेस ऑब्वियसली हमें इससे समझ आता है इस बेसिस पे कि हेमोग्लोबिन की एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। जो भी प्रोटीन्स क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के होते हैं, उनके दो शेप्स बनते हैं। ईदर दे हैव अ स्फेरिकल शेप, जिन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं, और ईदर दे हैव अ लीनियर शेप, विच इज वाई उन्हें फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल जो हमने एएस में भी किया था वो है कोलेजन। सो कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन जिसका एक बिल्कुल लाइंस के तौर पे शेप, इट्स अ वेरी लीनियर शेप, सो दिस इज बेसिकली कोलेजन। इवन दैट हैज अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, तो वो लीनियर शेप था विच इज फाइब्रस प्रोटीन। हेमोग्लोबिन ऑन द अदर हैंड, उसका एक बॉल लाइक शेप होता है, एक स्फेरिकल शेप होता है, इसीलिए हम उसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। अब यू सी, हेमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लेकिन this protein molecule is made of two smaller protein molecules. So दो छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंबाइन करके ये बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं हेमोग्लोबिन का। Now what are the names of these two smaller proteins? सबसे पहले the first one is alpha globin and the second one is beta globin. Both of these are examples of protein molecules. अब ये हेमोग्लोबिन बनाने में कैसे मदद करते हैं? व्हाट हैपेंस इज, अल्फा ग्लोबिन से दो चेन्स बनती हैं, दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनती हैं, एंड ऑब्वियसली अगर अल्फा ग्लोबिन से चेन बनी है तो उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा चेन। बीटा ग्लोबिन भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाता है और उसका नाम आ जाता है बीटा चेन। अब कुड यू टेल मी, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितनी अल्फा चेन्स होती हैं और कितनी बीटा चेन्स होती हैं? I think they're like two each, I think. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इट्स
two alpha chains and two beta chains per one hemoglobin molecule. तो पहले इसको हम समराइज करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन जिसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स वाले जो भी प्रोटीन्स होते हैं दे हैव टू ऑप्शंस, या तो वो स्फेरिकल शेप के हों या वो लीनियर शेप के हों। कोलेजन जो लीनियर शेप का है इसीलिए उसका नाम फाइब्रस प्रोटीन है बिकॉज इट लुक्स लाइक फाइबर्स, स्ट्रेट लाइंस। हेमोग्लोबिन स्फेरिकल शेप का है तभी इसका नाम ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन बनता है दो छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल से, अल्फा ग्लोबिन बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन बनाता है दो अल्फा चेन्स, बीटा ग्लोबिन बनाता है दो बीटा चेन्स। टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स टुगेदर मेक वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब इस सब का क्या ताल्लुक है विद व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ? लेट मी असाइन अ पेज हियर। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अब एचपीबी जीन का इससे क्या ताल्लुक है? HBB जीन कोड्स फॉर दिस बीटा ग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? दो बीटा जीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड दीज बीटा जीन्स अफेक्ट द आरबीसी का शेप एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ट्रांसपोर्ट अस, बिकॉज रिमेंबर हेमोग्लोबिन कहाँ पे फाउंड होता है इन द बॉडी? The red blood cells. इन द रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल। अगर हेमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ इन बीटा चेन्स का शेप चेंज होने की वजह से, सो व्हाट हैपेंस इज बीटा ग्लोबिन का शेप चेंज होता है, बीटा चेन्स का शेप चेंज होता है, हेमोग्लोबिन का शेप चेंज होता है। हेमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर है, व्हिच मींस कि अब आरबीसी का शेप अफेक्ट होगा। एंड आरबीसी फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ये अमाउंट जितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो भी अफेक्ट होगा। अब ये कैसे अफेक्ट होगा? दैट्स द मेन थिंग व्हिच वी हैव टू लुक एट। तो डू यू स्टिल रिमेंबर सिकल सेल एनीमिया जो हेमोग्लोबिन के साथ डिस्कस हुआ था एएस में? Yeah. तो सिकल सेल एनीमिया होता कैसे था? Basically, the cell they were like half moon shaped. Uh, I ओके। think. सिकल सेल एनीमिया, हाँ you're राइट कि वो सिकल शेप का होता है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये होती कैसे? डू यू रिमेंबर दैट? Basically, I think the hemoglobin it was a bit distorted. ओके। अच्छा, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बिट ऑफ डिटेल। होता क्या था? लेट्स कंपेयर टू थिंग्स। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर हेमोग्लोबिन, so normal, and then let's compare that with sickle cell anemia। अगर हम हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को देखेंगे ना एक नॉर्मल इंसान में, तो ऑब्वियसली उसमें हमें चार चेन्स मिलेंगी जिसमें से दो अल्फा होंगी, अल्फा चेन्स, और यहाँ पे दो बीटा चेन्स होंगी। अब प्रोटीन्स के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जिस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अमाइनो एसिड्स होती हैं, एज इन जिस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज होती हैं, इट्स इन अ वे कि जो अमाइनो एसिड्स पोलर होते हैं वो मॉलिक्यूल की सरफेस पे होते हैं, एंड जो अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर होते हैं वो मॉलिक्यूल के कोर के अंदर होते हैं। इज दैट राइट? So, for example, if you have this polypeptide chain right here, this would look something like this. अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ऑल ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स, ये सारे के सारे दीज आर पोलर क्योंकि ये सरफेस पे हैं। ये सारे अमाइनो एसिड्स कोर के अंदर है, ये नॉन पोलर है। हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों अरेंज होते हैं अमाइनो एसिड्स? क्योंकि जो सरफेस पे होते हैं उनको पोलर रखना जरूरी होता है, बिकॉज वी वांट देम टू इंटरैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आल्सो पोलर। तो जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो ये अलाउ करेंगे इस पूरे मॉलिक्यूल को पानी में डिसॉल्व होने देने के लिए। डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does. तो हमने क्या समझा अभी तक कि सरफेस पे हेमोग्लोबिन के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर पोलर, एंड कोर के अंदर मतलब इनर साइड पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक।
एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गोज ऑन हियर। सिकल सेल एनीमिया में क्या फर्क है? अगेन, हेमोग्लोबिन उसमें भी होता है, चार चेन्स उसमें भी हो सकती हैं, दो अल्फा एंड दो बीटा। व्हाट्स द डिफरेंस? The difference is in one of, now this is very important, in one of the beta chains, दो में से कोई भी एक बीटा चेन में, बीटा चेन जो सरफेस पे अमाइनो एसिड्स होते हैं हम उनकी बात करें, सो यू कुड थिंक ऑफ दिस एज अ बीटा चेन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाइनो एसिड्स जो इस बीटा चेन की सरफेस पे होती हैं, एनी वन आउट ऑफ द टू चेन्स। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स इनमें से एक अमाइनो एसिड जो है ना, उसका नाम था ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड का जो आर ग्रुप था वो था पोलर, तभी तो इनको सरफेस पे रखा गया था, बिकॉज द रीजन व्हाई वी केप्ट इट एट द सरफेस इज क्योंकि इसका आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक था। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करता और पूरे मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने में मदद करता। हुआ यूं कि ये ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया इनटू एन अमाइनो एसिड कॉल्ड वलाइन और वलिन। अब वलिन का क्या मसला है? अगर हो भी गया चेंज, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज वलिन का आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, एंड ये वलिन कहाँ पे इस वक्त, सरफेस पे या कोर पे? Surface. इट्स एट द सरफेस, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड भी तो सरफेस पे ही था ना, क्योंकि उसका आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक था। ग्लूटामिक एसिड की जगह वलिन आ गया। ये तो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो बॉन्ड नहीं बना सकता, विच मींस कि इसकी वजह से हेमोग्लोबिन अब आरबीसी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इफ यू थिंक कि एक अमाइनो एसिड अगर इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी सारे तो कर रहे हैं, बट नो, वी वांट एवरी सिंगल अमाइनो एसिड टू इंटरेक्ट। क्योंकि वलिन नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा, बिकॉज इट कांट, उसका आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर के साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकता, तो अब हेमोग्लोबिन डिसॉल्व होने में उसको मुश्किल आई, इट कांट डिसॉल्व प्रॉपरली। तो आई विल राइट द होल थिंग डाउन हियर। इन वन ऑफ द बीटा genes, when we look at the amino acids on the surface, so just revise hemoglobin's ka topic, this will become really, really easy. When we look at the amino acids on the surface of the beta chain, one of those amino acids is glutamic acid. And make sure you remember the name of this amino acid, glutamic acid. Glutamic acid, what's the good thing about it? It has a polar R group, which is why it's able to interact with the water molecules and it's able to help hemoglobin dissolve. However, in sickle cell anemia, the glutamic acid is replaced with an amino acid called valine. Now, what's the problem with this? The problem is it has a hydrophobic R group. So it can't interact with the water molecules और hemoglobin dissolve नहीं हो पाता. Because वो properly dissolve नहीं होता, this is where it gets the sickle shape form. एक distorted shape आ जाता है RBC का उसकी वजह से. तो whatever हमने ये सारी चीजों में यहाँ पे बात की, इन सारी चीजों की समरी क्या थी? एक अमाइनो एसिड का चेंज होना, ग्लूटामिक एसिड से वलिन का बनना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ म्यूटेटेड एचबीबी जीन डज। नॉर्मल एचबीबी जीन में जो वो कोड करता है बीटा ग्लोबिन के लिए और जो वो कोड करता है बीटा चेन के लिए, इस चेन की सरफेस पे ग्लूटामिक एसिड है। बट नाउ इसको अगर हमने म्यूटेट किया तो ये बीटा ग्लोबिन भी म्यूटेट होगा, तो इसका मतलब बीटा चेन भी म्यूटेट होगी, एंड इसका मतलब अब ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा अमाइनो एसिड होगा? Could you repeat? So if the HBB gene is mutated, that would mean the beta globin is mutated. If this is mutated, तो beta chains भी mutated हैं.
तो इसका मतलब कि ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा अमाइनो एसिड अब होगा? Valine. वलीन, बिल्कुल सही। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि अमाइनो एसिड चेंज हुआ। अमाइनो एसिड क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एचबीबी एलील म्यूटेट हो गया। सो लेट मी राइट दिस हियर। In a mutated HBB allele, the beta globin produced is mutated. Obviously, अगर जीन ही mutated है तो जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा वो भी mutated होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होंगे ना, बिकॉज द न्यूक्लियोटाइड बेसिस यहाँ पे डिफरेंट है। तो ट्रांसलेशन डिफरेंट तरीके से होगी। सो बीटा ग्लोबिन इज म्यूटेटेड। इसकी वजह से द टू बीटा चेंज जो प्रोड्यूस होते हैं ये भी म्यूटेटेड होते हैं। एंड यहाँ पे म्यूटेटेड होने का मतलब बीटा चेन्स की, कि वन ऑफ द बीटा चेन्स की सरफेस पे इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म GLU है, हमने VAL अमाइनो एसिड रिप्लेस कर दिया, विच इज वलाइन। एंड दिस causes the RBC or the red blood cells to have a sickle shape. I understand अभी थोड़ा confusing हो रहा होगा because you have not properly revised जो hemoglobin का topic, you don't properly remember that. So what I would advise is just revise the hemoglobin का जो पूरा topic था and then look at the recording again. So उससे ये चीजें बहुत ज़्यादा clear होंगी. You will be able to understand each and everything. You will be able to relate because you obviously remember it by now. Okay. So because the RBC will have a sickle shape, तो इसलिए the name of this disease or condition is sickle cell anemia. अब एक आखिरी चीज, नॉर्मल HBB जीन के लिए हम कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? HB कैपिटल A। म्यूटेटेड HBB जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज HB कैपिटल S। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्मली रिसेसिव एलील को हम कैपिटल लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं? Short, like the mutated one, right? या द म्यूटेटेड वन। Yeah, then small. या स्मॉल, बिल्कुल। म्यूटेटेड वन या रिसेसिव जो एलील होता है, रिसेसिव एलील को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लुक इट्स कैपिटल एस। एंड इवन द डोमिनेंट वन कैपिटल ए इज आल्सो इन कैपिटल फॉर्म। तो यहाँ पे दोनों ही कैपिटल हैं। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि को डोमिनेंस है, नो, इट्स बेसिकली जस्ट अनदर वे व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, इन व्हिच द रिसेसिव एलील फॉर सिकल सेल एनीमिया इज रिटन। तो यहाँ पे तीन केसेस के हैं, एच बी कैपिटल ए, HB capital A, this is normal. फिर उसके बाद HB capital A, this is the dominant allele, and this is the recessive allele. So this is obviously normal, but this can be carrier. And then I'll come back to this in a second. HB capital S and HB capital S, this is to confirm sickle cell anemia. अच्छा, इसमें ये जो बीच वाला हेट्रोजाइगस था, इसमें एक चीज है, वन सेकेंड। ये हेट्रोजाइगस में क्या है कि इट्स नॉट रियली अ पर्सन हु हैज दिस, इज नॉट रियली नॉर्मल। उस बंदे को एक कंडीशन होती है विच इज कॉल्ड वेरी माइल्ड सिकल सेल एनीमिया। इसका मतलब उसकी बॉडी में अभी भी कुछ आरबीसीज हैं जिनका सिकल शेप है, बट इट्स वेरी फ्यू ऑफ देम, इट्स वेरी लेस आरबीसीज व्हिच हैव अ सिकल शेप एंड नॉट ऑल ऑफ देम। इसमें तो सारे के सारे आरबीसीज का सिकल शेप होता है। सो दिस इज वेरी माइल्ड sickle cell anemia. Again, if we need to understand the difference between these two, very mild और actual sickle cell anemia में फर्क क्या है? तो very mild का मतलब है कि most RBCs have bioconcave disc shape. However, जो हमने अभी बात की, some have a sickle shape. अच्छा, when you compare this to having sickle cell anemia, इसका मतलब ये है कि all RBCs have sickle shape, and what this does is दो चीजें इससे अफेक्ट होती हैं, it results in two things happening. Number one,
ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लिमिट हो जाता है, बिकॉज थिंक अबाउट इट, बायो कॉनकेव डिश शेप का होने का फायदा क्या था? बहुत सारा ऑक्सीजन एक रेड ब्लड सेल में जा सकता था। अब अगर शेप ही चेंज हो गया है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हैज बीन लिमिटेड। नाउ देयर इज लेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड पर आरबीसी मॉलिक्यूल। एंड नंबर टू, अब इसकी वजह से इट ब्लॉक्स द ब्लड कैपिलरीज, बिकॉज पहले ब्लड कैपिलरीज की जो विथ थी वो आरबीसी के बायो कॉन्केव डिस्क की विथ के बराबर थी, तो वो मुश्किल से ही सही लेकिन निकल जाता था। अब आरबीसी की शेप चेंज हो गई, कैपिलरी की विड्थ तो उतनी ही है, सो इज इट गोना ब्लॉक द कैपिलरी और इज इट स्टिल गोइंग टू पास थ्रू? It's gonna block the capillary. It's going to block it, and when you block the blood capillary it results in the blood being jammed, as in traffic jam हो जाता है, or something which you call as clotting, blood की clotting हो जाती है। सो एज अ समरी, अ वेरी माइल्ड सिकल सेल एनीमिया का मतलब है कि ज्यादातर आरबीसीज का नॉर्मल शेप है, कुछ का सिकल शेप होता है विच डज नॉट रियली अफेक्ट देयर डे टू डे लाइफ। लेकिन सिकल सेल एनीमिया होने का मतलब है कि सारे आरबीसीज का सिकल शेप है। इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अब कम हो जाता है पर आरबीसी मॉलिक्यूल, और क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज हुआ है लेकिन कैपिलरी की विड्थ तो सेम है, तो ब्लड कैपिलरीज अब ब्लॉक होने लगती हैं कुछ कुछ, विच मीन्स के ब्लड क्लॉटिंग रिजल्ट में आ जाती है। So that would be it. Any questions, any confusions from any three of these genes which we discussed? No, it's clear. Okay, अब मैं चाह रहा था कि हम एल ई जीन कर लें, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग वन, क्योंकि इसमें वी हैव टू गो बैक टू अनदर टॉपिक जो एएस में है, तो हमें वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो वील डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास अलोंग विथ जीन एक्सप्रेशन की जब हम बात करेंगे। दिस इज बेसिकली द लास्ट फाइनल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, एंड देन वी विल बी फाइनली डन विद दिस चैप्टर। So could you give a summary of what we did today? Right. So basically, first we discussed about the HTT gene, which is for the Huntington's disease, and it's Mhm, basically present on an autosome, and basically the small h, it's the normal allele, and the mhm, HTT, gene, the gene which the allele which causes Huntington is the dominant one, and basically it's a condition which basically causes like a neurological disorder, I think, and basically Yeah, as a brain condition affect होती है। yeah, Mhm, it's like a brain condition, and then basically it is like it has like a middle age onset, like if I think there are 35 to 40 repeats, I think CAG repeats. if they're uh, mutated. yeah. So there are two things. Mutated can be more than 36, and too much of mutation can be more than 40. Yeah, okay. And then basically the symptoms we discussed about mood swings and lack of muscle movement. Mhm, Then we basically discussed about the factor VIII gene, which was coding for the factor VIII protein, and it was like a sex-linked gene, I think, and mhm, basically it was basically causing a condition called hemophilia, in which the blood does not mhm, clot well after an injury, and yeah, that, and then basically then we discussed about yeah, and in the factor VIII gene, the small edge, it was like for the abnormal allele, and then mhm. basically we discussed about the uh, I forgot the name of the last gene. I think it was The HBB HBB. gene. Yeah, Yeah. it was like HBB, and basically it was coding. It was for I think abnormal beta globin chains,
and Correct. basically for this one what was happening is basically that there was on the surface of the polypeptide there was this nucleotide base, the gene, I think it was like the The gene. amino acid. Yeah, sorry, the amino acid glutamic acid, it was replaced by valine, so Right. basically it was Correct. altering the beta globin structure. And Correct. since the beta globin structure was being altered, the shape of the red blood cell was changing, and it was like sickle Mm-hmm. shaped, and it was basically causing a blockage in the blood capillaries. Mm-hmm. Yeah, and basically And was oxygen transport limited or was it the same? it was limited. As well limited. Okay, बिल्कुल सही. Perfect. So we are left with just one more gene. It's called the LE gene, जो gibberellins के relation में होता है. We'll do that, and then in the next class हम gene expression करेंगे, and that would be the end of the chapter. Right. Is there any AS topic you were like saying that was connected to? Like I could maybe just revise that before the next class. Yeah. Let me just check. ओके 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 नो इनफैक्ट नहीं क्योंकि इस हमने A2 की टॉपिक में जो होम्योस्टेसिस था उसमें ही हमने गिबरेलिन्स एंड द एक्सीटी एंजाइम एंड द हेमीसेल्यूलोज उसकी बात की थी राइट Yeah, yeah, yeah. या हाँ तो फिर यही वाला टॉपिक रिपीट होगा इफ यू कैन रिवाइज दैट फ्रॉम होम्योस्टेसिस या मसल कोऑर्डिनेशन जो भी चैप्टर था सॉरी नर्वस सिस्टम व्हाटएवर चैप्टर दैट वाज यू कैन रिवाइज दैट तो फिर उसमें भी Okay. कल आसान हो जाएगा Okay, okay, I will. Okay. राइट Thank ऑलराइट you, थैंक Allah यू Hafiz.